Rahim. Assalamu alaikum. How are you? I'm sure you are fine at home, class 7. This is your mathematics lecture. Today we are going to start here again, chapter 5. The topic of the chapter is quadratic equation and graph. Okay? And the task 17. It means the lecture is also 17. And your task, today's task is exercise 5A, question number 7 B part and question number 8 A part. You have to solve on copy 1. Okay? And collect your copy 2 when you have to receive the answer message from your school. Okay? Now, what is the equation of quadratic? या quadratic equation क्या होती है? A quadratic equation is an equation of the second degree, meaning it contains at least one term that is squared. The standard form is ax square plus bx plus c is equal to 0. It means the quadratic equation is always equals to 0. Okay? With a, b and c being constants. इसमें a, b और c कोई भी constant हो सकते हैं और numerical that coefficient. And x is an unknown variable जिसकी वैल्यू हम लास्ट में जाके फाइंड करते हैं. जो हमारे पास 2 वैल्यूज आती हैं, जो रिक्वायर्ड वैल्यू होती है उसको हम उसमें से सेलेक्ट कर लेते हैं और दूसरी को रिजेक्ट भी कर देते हैं बाज टाइम. One absolute rule is that the first constant a कैन नॉट बी 0. यहाँ पे a कभी भी 0 नहीं होगा क्योंकि a इज अगर 0 है तो वो मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर से और इक्वेशन विल बी इन ऑर्डर. इट इज नॉट इन ऑर्डर. ओके. देन a इज नॉट कैन नॉट बी 0. कभी 0 नहीं होगा. ये 1 से लेके कोई भी इसका कोफिशिएंट वो हो सकता है कांस्टेंट, लेकिन 0 नहीं होगा. ये याद रखिएगा. ओके. Then who invented the quadratic formula? Quadratic formula किसने बनाया था? That was an mathematician Muhammad bin Musa al-Khwarizmi. Okay, in 1825 CE, about 2500 years after the Babylonian tablets were created, a general method that is similar to today's quadratic formula was authored by the Arab mathematician Muhammad bin Musa al-Khwarizmi in book Hisab al-Jabr wa al-Muqabila. Okay, it is clear to you. This was only the general knowledge. Now today we are going to start our practice. Chapter 5, exercise 5A, question number 5A E. Question number 6 is complete. Question number 7 AC, 8B and 9 CE parts. Okay. And the task is or diary is question 7B and question 8A, which have you done on copy 1. Solve the following equation. S square plus 10s plus 21 is equal to 0. This is the general formula or general form of quadratic equation. Equals to 0. Now you have to factorize 10s. 10s को आपने factorize करना है ऐसे कि मल्टीप्लाई करें तो 21 आए और प्लस माइनस करें तो 10 आ जाए, 10s आ जाए. ओके. 7 3s are 21 and 7s plus 3s when added it makes 10s. Okay. Now you have to take the common. वही पुराना प्रोसीजर आपका s plus 3 and s plus 7. Now both of the brackets will be equals to 0 one by one. S plus 3 is equal to 0 and s plus 7 is equal to also is equal to 0. Now value of the s is minus 7 and here the value of the s is minus 3 and minus 7. Okay, two values आ गई हैं आपके पास s की, minus 3 और minus 7. Now E part में again you have to factorize the 3 6s are 180, 3 60s are 180 and 180 को आपने ऐसे फैक्टराइज करना है कि 49 आपके पास प्लस माइनस करके आ जाए और मल्टीप्लाई करके आपके पास 180 आ जाए. 45 4s are 180. Then you have to take the common 3w, w plus 15
and plus 4 is also take the common, w plus 15 here, and both of the values are equals to 0 0 0. ओके, यहाँ तक ये 0 है. उसके बाद जो हमारे पास दो ब्रैकेट्स आ गई हैं उनको हमने 1 by 1 इक्वल्स टू 0 किया और w की वैल्यू निकाल ली है. वैल्यू हमारे पास आती है -1 whole 1 by 3. एक वैल्यू ये आ गई और एक आ गई -15. टू वैल्यूज हमारे पास आ गई. इट इज क्लियर टू यू. देन क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो ये है. ये होना चाहिए कि हमारे पास एक वैल्यू स्केयर्स में हो, बट समटाइम दैट इज नॉट पॉसिबल. तो कुछ और भी हो सकती है, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0. ओके, अब यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे. देख लें आप, इसमें कॉमन फाइंड हो रहा है. कॉमन लेते हैं 7x². 7x² कॉमन आ गया. x plus 3 यहाँ अंदर है. अब 7x² इक्वल्स टू 0 एंड x plus 3 इक्वल्स टू 0. इनको भी इक्वल टू 0 करेंगे हम. x² इज इक्वल टू 0. x², 7x² इज इक्वल टू 0. अब 0 से जब कोई नंबर डिवाइड होता है, मल्टीप्लाई होता है, और या उसका हम स्केयर लेते हैं और स्केयर रूट लेते हैं, कुछ कैंसिल करते हैं, तो हमेशा 0 ही आंसर आता है. देन x इज इक्वल टू 0. x plus 3 इज इक्वल टू 0 और x की वैल्यू आ गई -3. तो 0 एंड -3 इज द वैल्यू ऑफ x. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7. 7 में आपके पास फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, और वो कौन सा? थर्ड आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है. थर्ड आइडेंटिटी में हमारे पास टू स्केयर्स होते हैं. उनको हमने एक दफा प्लस से और एक दफा माइनस से ओपन कर दिया. अब माइनस वाले को भी इक्वल्स टू 0 कर देंगे, प्लस वाले को भी इक्वल्स टू 0 करके आप a की वैल्यू फाइंड कर लेंगे. अब a की वैल्यू हमारे पास आ गई 11 और -11. ठीक है, टू वैल्यूज आ गई. सेम हेयर, यहाँ पे भी c का स्क्वायर है, -1/4 है. 1/4 इज द स्क्वायर ऑफ 1/2. अब ये बोथ ऑफ द स्क्वायर, एक दफा माइनस से एक दफा प्लस से, इक्वल्स टू 0. अब यहाँ हमने इसको इक्वल्स टू 0 कर लिया और इसको भी इक्वल्स टू 0 कर लिया. 1 by 1 बोथ ऑफ द ब्रैकेट्स. नाउ यू हैव टू टेक द वैल्यू ऑफ c. एक आ जाएगी प्लस में 1/2 और एक आएगी माइनस में 1/2. हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते थे. a इज इक्वल टू 11 और इसी तरह हम प्लस माइनस करके इसको भी लिख सकते हैं. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 बी पार्ट. सिर्फ बी पार्ट सॉल्व करना है. बी पार्ट को हम टू पार्ट्स में कर लेंगे, इसलिए कि एक दफा हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे. अब फैक्टर्स के लिए हमारे पास आ गया यहाँ पे 120 h². 120 को हमने, अच्छा अब क्या है कि 15 इज इक्वल टू 8h² माइनस 2h. अब ये है हमारे पास इक्वेशन, ये है फर्स्ट डिग्री की इक्वेशन, लेकिन हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे. क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको अरेंज करें. अरेंज कैसे करते हैं? 8h² माइनस 2h और यहाँ से 15 को इधर ले आएंगे और यहाँ पे रह जाएगा हमारे पास 0. -15 इज इक्वल टू 0. अब हमने इसके फैक्टर्स बना दिए. 120 h² के फैक्टर बनाए, 12 and 10. 12 and 10 बन गया. उसके बाद हमने इसमें से कॉमन ले लिया. 4h यहाँ से कॉमन लेंगे दोनों में से. 2h माइनस 3 प्लस 5 कॉमन ले लिया. 2h माइनस 3 इज इक्वल टू 0. 0 इक्वल्स टू चलता जाएगा. अब आपके पास फिर उसी तरह से टू ब्रैकेट्स आ गई. देन 1 by 1 you have to take the equals to 0. 4h plus 5 equals to 0. 2h minus 3 is equal to 0. ठीक है. Now you have to find the value of h. एक हमारे पास आती है -1 whole 1 by 4 और दूसरी आ रही है 1 whole 1 by 2. टू वैल्यूज हमारे पास आ गई. ये सिंपली आप जो सिंपल आप इक्वेशन सॉल्व करते थे उसमें से h की वैल्यू निकालेंगे. जो हमारे पास टू ब्रैकेट्स होती हैं इनको 1 by 1 इक्वल्स टू 0 करके हम h की टू वैल्यूज निकाल लेते हैं. ठीक है. अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट C एंड E. C पार्ट में ऑलरेडी यू हैव टू हेयर द टू ब्रैकेट्स. हम इनको पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मल्टीप्लाई. अब हमारे वो जो पिछले वाले होते हैं ना, जो भी प्रोसीजर्स हम सीख के आए हैं, जो भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे, वो साथ साथ अप्लाई हो रहे होते हैं. अब यहाँ टू ब्रैकेट्स हैं.
इनको पहले हम मल्टीप्लाई करके और इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे हम। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ बन गई हमारे पास, ये बनी है n² प्लस 2n माइनस 35, ये 27 भी यहाँ आके माइनस हो गया। पहले इसको मल्टीप्लाई किया था तो ये वैल्यूज आ गई थी, देन इसको भी हम यहाँ ले आए, अब यहाँ इक्वल्स टू 0 हो गया और ये हमारे पास बन गया, ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके हम फैक्टर्स बनाएंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में -35n² है हमारे पास, हमने इसके फैक्टर्स बनाए। -35 के लिए 7 5 35 करेंगे और 7 और 5 को जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास 2n आ जाता है, हमें 2n चाहिए, ठीक है। और मल्टीप्लाई करके -35n² चाहिए, वो भी हो गया। देन बोथ ऑफ द ब्रैकेट्स विल बी इक्वल्स टू 0, 1 by 1, और n की वैल्यू हमारे पास आ गई 5 and -7, ये 2 वैल्यूज आ गई, ठीक है। देन ई पार्ट में फिर उसी तरह से ही है क्वेश्चन। इनको पहले आप मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद 18 को यहाँ लाके इसके साथ सॉल्व कर देंगे, कांस्टेंट को कांस्टेंट से प्लस और माइनस, देन दिस विल बी द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक स्क्वायर वैल्यू है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, प्लस और माइनस साइन डिफरेंट हो सकते हैं, कोई मसला नहीं है। फैक्टर्स बना लेंगे, फैक्टर्स बनाए हमने, 12 और 1 बन गया, 12 प्लस 12 मल्टीप्लाई बाय 1 हो गया, तो वो होगा हमारे पास 12, और हमें -12 चाहिए तो -12 प्लस -11 चाहिए, -11 आ जाएगा हमारे पास। नाउ both of the values equals to 0, 1 by 1, and you have to find the value of q, -1 by 2 और 6, ये हमारे पास 2 वैल्यूज आ गई q की। This is the end of the exercise 5A, and these are the tasks or diary you have to solve on copy 1, or all this practice will be revised on your rough copy. Okay.